So good afternoon. Up till now, we have completed with 2 lectures of knowing numbers. Yes. In this third lecture, we are going to study something related to the greatest given digit numbers. Okay. What does this mean? This means if I ask you what is the greatest 2 digit number, what is greatest 3 digit number, what is greatest 4 digit number, you should be able to answer. Second question, smallest 2 digit number, smallest 3 digit number, smallest 4 digit number, smallest 5 digit number, you should be able to answer. These are few things which we are going to keep in our mind. When somebody asks me what is going to be the smallest and the greatest 2 digit number, 3 digit number, 4 digit number, right? So that is what we are going to study today. In the previous lectures, we have already seen how to compare two given numbers. The entire game of 2 lectures were this only. How to compare two given numbers, right? So we'll be processing that part here also. So now I'm going to show you whiteboard, and on whiteboard we are going to discuss some important concepts and things. Okay, so here I go. Just look at the whiteboard I'm sharing. So this is the new concept that we have, concept 7. Okay, so this concept 7 is very important. Can you see this? Greatest and smallest number when number of digits are specified. मतलब अगर मैं आपको पहले से बोल दूं कि find 2 digit greatest number, 3 digit greatest number, so let me write it like this, I will write it like this कि अगर मैंने तुमको for an example, देखो अभी देखो यहाँ पे मैं क्या करूँगा. What I'll do is यहाँ पे मैंने एक 2 digit number बोला. क्या बोला? 2 digit है ना. उसके बाद से मैंने तुमको बोला 3 digit. Can you see this? 3 digit. फिर मैंने बोला 4 digit. Is it okay? फिर मैंने बोला 5 digit. तो अगर मैं बोलूं कि ये सारे 2 digit, 3 digit, 4 digit, 5 digit है ना, 6 digit नंबर है, राइट? एक काम करते हैं, हम लोग 1 digit से शुरू करते हैं. दैट इज बेटर टू गेट लॉन्ग. से मैंने 1 digit बोला है ना, तो 1 digit से लेके 6 digit तक मैंने तुमको बोल के रखा हुआ है. करेक्ट है कि नहीं? अभी तुमको क्या करना है मालूम है? मुझे ग्रेटेस्ट नंबर बताना है. क्या बताना है? ग्रेटेस्ट नंबर बताना है. देखो मैं यहाँ पे लिख रहा हूं, यहाँ पे मैं लिख रहा हूं ग्रेटेस्ट नंबर. ठीक है, बराबर. और सिर्फ ग्रेटेस्ट नंबर ही नहीं बताना है, कुछ और भी बताना है. क्या? स्मॉलेस्ट नंबर भी बताना है. कैन यू सी दिस? है ना. तो तुम मुझे ग्रेटेस्ट नंबर और स्मॉलेस्ट नंबर बताओगी. क्या करोगी? कंसेप्ट 7 के हिसाब से मैंने यहाँ पे नंबर ऑफ डिजिट्स तुमको दे दिया. अब तुम मुझे ग्रेटेस्ट नंबर बताओगी और स्मॉलेस्ट नंबर बताओगी. ठीक है, तो बताओ 1 digit का सबसे बड़ा नंबर कौन सा होता है? ऐसा क्यों है? नो प्रॉब्लम, होता है कभी कभी. रिलैक्स, नो नीड टू शाउट. आराम से बुलाओ. Sometimes screens go by. So you now tell me what is the greatest number and what is the smallest number for 1 digit. बताओ 1 digit के लिए ग्रेटेस्ट नंबर कौन सा है और स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा है? 1 digit के लिए. हाँ, एक बात समझा? आवाज आ रही है? 1 digit के लिए ग्रेटेस्ट नंबर कौन सा है और स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा है? और स्मॉलेस्ट नंबर 1 digit में ग्रेटेस्ट कौन सा और स्मॉलेस्ट कौन सा है? अरे सबसे बड़ा नंबर कौन सा है 1 digit का? 1 digit में. हाँ, तो पता नहीं कैसे बोल दिया है ना. यू हैव 9 एज द ग्रेटेस्ट नंबर, राइट? यस और नो? मैं काम करता हूँ, फॉन्ट चेंज करता हूँ so that it can be easy for you to understand. है ना?
तो ग्रेटेस्ट नंबर क्या हुआ? ग्रेटेस्ट नंबर सर 9 हुआ, है ना? एंड व्हाट इज द स्मॉलेस्ट नंबर, यू टेल मी नाउ, व्हाट इज द स्मॉलेस्ट नंबर? जीरो को हम नंबर, जीरो अगर आपने लिख दिया तो 1 डिजिट नहीं होगा ना, जीरो लिख दिया तो 0 डिजिट हो जाएगा, 1 डिजिट के लिए कम से कम 1 होना चाहिए, तो स्मॉलेस्ट नंबर इज 1, it's not 0. Okay, so the smallest number is 1, greatest number is 9. पक्का? अच्छा ठीक है, अभी 2 डिजिट नंबर की बात करते हैं, चलो लेट्स टॉक अबाउट 2 डिजिट नंबर. टेल मी which is the greatest 2 digit number? Tell me which is the greatest 2 digit number? 1 2 3 4 आता है ना, तो सबसे बड़ा नंबर कौन सा है 2 डिजिट का? जल्दी बताओ, जल्दी बताओ. जल्दी जल्दी से. 2 digit greatest number 1 2 3 4 you might be knowing, right? तो 1 2 3 4 बोलो एक बार, लास्ट का पार्ट बोलो उसका. 1 से लेके 1 is 1 digit, 2 is 2 digit, 3 is 3 digit, 4 sorry 3 is 1 digit, 4 is 1 digit, 5 is 1 digit, 6 is 1 digit, all these are 1 digit numbers. I think I said something wrong. 1 से लेके 9 तक सब कुछ 1 digit है, उसके बाद 2 digit शुरू होता है. यस और नो? राइट? हाँ, तो 10 सबसे बड़ा 1 डिजिट नंबर कौन सा होगा जो कि लास्ट 1 डिजिट होगा? याद रखना, ग्रेटेस्ट नंबर का मतलब होता है लास्ट नंबर, है ना? तो ग्रेटेस्ट 1 डिजिट नंबर कौन सा है जो लास्ट 1 डिजिट नंबर है. वैसे ग्रेटेस्ट 2 डिजिट नंबर कौन सा होगा जो लास्ट 2 डिजिट नंबर होगा. समझ में आ रही बात, है ना? तो ऐसा कौन सा नंबर है जिसके बाद 3 डिजिट शुरू हो जाता है? वेरी गुड. सो 99 is going to be the greatest 2 digit number. समझ में आया? yes no? so here we have clear. तो सबसे बड़ा 2 digit नंबर कौन सा है? सबसे बड़ा कौन सा है? 99. समझ में नहीं बात? तो ग्रेटेस्ट का मतलब होता है लास्ट 2 डिजिट नंबर. अच्छा, स्मॉलेस्ट का मतलब सर क्या होता है? स्मॉलेस्ट का मतलब होता है फर्स्ट 1 डिजिट, फर्स्ट 2 डिजिट नंबर. तो बताओ यहाँ पे सबसे पहला 2 डिजिट नंबर कौन सा है? तो सबसे लास्ट है ना, सबसे पहला कौन सा है? उसके पहले कोई नहीं है? कौन है? 100 3 डिजिट है. 2 डिजिट का सबसे पहला नंबर कौन सा है? हाँ करेक्ट, सबसे पहला 10, उसके बाद बाकी सारे नंबर्स. तो बाकी सारे नंबर 10 से बड़े होंगे कि नहीं होंगे? बराबर ना, बड़े होंगे ना. तो सबसे छोटा 2 डिजिट नंबर कौन सा होगा? जो सबसे पहला होगा. पहला मतलब 10. क्लियर और नॉट? यस. तो ग्रेटेस्ट नंबर को मैं यहाँ पे देखो ब्रैकेट में भी लिख सकता हूँ लास्ट नंबर. क्या लिख सकता हूँ ब्रैकेट में? लास्ट. इट इज अलाउड क्योंकि वो लास्ट ही होता है. और स्मॉलेस्ट नंबर को मैं लिख सकता हूँ फर्स्ट. कैन यू सी दिस? कैन यू सी दिस? मैंने क्या किया, मैं इसको फर्स्ट लिख रहा हूं. ये देखो, दिखा? राइट. तो स्मॉलेस्ट नंबर का मतलब क्या होता है? फर्स्ट नंबर. और ग्रेटेस्ट नंबर का मतलब क्या होता है? लास्ट नंबर. क्लियर? यस नो? चलो शुरू करते हैं. 3 डिजिट का 3 डिजिट का
सबसे बड़ा नंबर बोलो। 3 डिजिट का सबसे बड़ा नंबर बोलो। वो तो सबसे छोटा है। थाउजेंड कैसे? थाउजेंड में 4 डिजिट होता है। जल्दी बोलो। क्या लिखा मैंने? समझा क्या? स्मॉलेस्ट बोलो, स्मॉलेस्ट। करेक्ट सर, स्मॉलेस्ट है 1000। 1000 है नहीं है? जो मैंने लिखा हो 1000 है ना? नालायक, वो 100 है। स्मॉलेस्ट डिजिट नंबर इज 100, इट्स नॉट 1000। क्लियर? हाँ, मैं यहाँ पे तुमको एक टिप दे देता हूँ, काम करता हूँ, उससे काम एकदम आसान हो जाएगा। ठीक है, अभी देखो टिप दे रहा हूँ। टिप क्या है जरा देखो। पहले मैं एक ये बना दूं, तुम्हारे लिए एक बॉक्स बना दूं ताकि टिप तुम्हारे लिए बहुत इजी हो जाए, है ना। फॉर्मेट में मैं यहाँ पे रेड ले लेता हूँ और तुमको यहाँ पर एक बॉक्स बना कर देता हूँ। ये बॉक्स देखो मैं तुम्हारे लिए बना रहा हूँ। कैन यू सी दिस बॉक्स? यस, रहेगा ना दिमाग में बॉक्स? चलो ठीक है, अभी इसमें हम लोग कुछ लिखेंगे। इस बॉक्स के अंदर कुछ लिखेंगे, ठीक है? यस, क्या लिखेंगे देखो। मैं लिख रहा हूं यहां पर टी फैक्टर्स पे थे, मतलब अंडरस्टैंड दिस। टिप इज लार्जेस्ट नंबर। अगर किसी ने बोला 2 डिजिट लार्जेस्ट नंबर तो 2 बार 9। किसी ने बोला 3 डिजिट लार्जेस्ट नंबर तो 3 बार 9। कोई भी लिखना नहीं है यहाँ पे, ध्यान दो, लिखना नहीं है। अगर कोई बोलता है 2 डिजिट लार्जेस्ट नंबर तो क्या करोगे? 2 बार 9। 3 डिजिट लार्जेस्ट नंबर 3 बार 9। 4 डिजिट लार्जेस्ट नंबर 4 बार 9। 5 डिजिट लार्जेस्ट नंबर 5 बार 9। समझ में आ रही कि नहीं बात? और सर स्मॉलेस्ट नंबर? स्मॉलेस्ट नंबर कैसे निकलता है मालूम है? हाँ, स्मॉलेस्ट नंबर कैसे निकलता है? पहला 1, क्या? पहला बाद का 0, बाद का 0। आई होप इट इज क्लियर। समझा नहीं समझा? पहला 1 बाद का 0। लार्जेस्ट नंबर का मतलब होता है सब 9। जैसे यहां पर देखो, 1 डिजिट नंबर तो 1 9, 2 डिजिट नंबर तो 2 9, 3 डिजिट नंबर तो 3 बार 9, 4 डिजिट नंबर तो क्या होगा बोलो? हाँ करेक्ट, यू आर राइट सर, 4 डिजिट नंबर है तो हाँ 4 बार 9। मैं इसका कलर बदल दूं। सर 4 बार 9, 1 2 3 4 दिख रहा है ना? सुनो, है ना? उसके बाद क्या है इधर? 5 डिजिट नंबर है तो क्या करेंगे? करेक्ट सर, 5 डिजिट नंबर है तो 5 बार 9, 1 2 3 4 5, खत्म हो गया। 6 डिजिट नंबर है तो करेक्ट, तो 1 2 3 4 5 6। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? यस नो? नहीं समझा? Yeah. So just 1 second. I hope it is clear. Clear ना? Yes no? अच्छा सर, चलो एक काम करते हैं,
अभी स्मॉलेस्ट नंबर बनाते हैं, स्मॉलेस्ट नंबर बना सकते हैं ना, स्मॉलेस्ट नंबर है ना। देखो यहाँ पे स्मॉलेस्ट नंबर कैसे बनता है, पहला वन बाकी जीरो, तो वन डिजिट था तो खाली वन, टू डिजिट था तो पहला वन दूसरा जीरो, थ्री डिजिट में क्या हुआ, पहला वन बाकी जीरो, फोर डिजिट में क्या होगा, पहला वन बाकी जीरो। देखो फोर डिजिट हो गया कि नहीं हो गया, यस नो, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे क्या होगा, बोलो जल्दी बोलो, पहला वन बाकी जीरो। ये देखो दिखा कि नहीं दिखा, आर यू ओके, यार समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। चलो नेक्स्ट सिक्स डिजिट है ना, सिक्स डिजिट, तो सिक्स में क्या होगा, सिक्स डिजिट में क्या होगा, सिक्स डिजिट कैसे बनेगा स्मॉलेस्ट नंबर, सर एक वन और बाकी पांच जीरो, सर पांच पांच, एक वन पांच जीरो, एंड दिस इज हाउ यू गेट, यस और नो, नहीं समझा क्या, ओके तो मैं अभी तुम्हारे लिए एक टेक्स्ट बॉक्स बना देता हूँ, टेबल जैसा बन जाएगा, है ना, ये देखो टेबल, ठीक है, उसके बाद यहां से शुरू हो रहा है, कैन यू सी दिस, राइट, यस, चलो फिर, चलो फिर अब यहां से बनाना चालू करो, ठीक है, so you have got greatest number, smallest number, and here digits, here also you can write digits by the way, ठीक है, चलो फटाफट फटाफट तुम स्टार्ट करो, ये लिखना स्टार्ट करो, जल्दी, मेक दिस टेबल, मेक दिस टेबल, इस टेबल के राइट हैंड साइड में टिप लिखना है, जैसे मैंने लिखा है बिल्कुल वैसे ही सभी को लिखना है, जैसे मैंने लिखा है बिल्कुल वैसे ही लिखना है, ओके, so we have actually learned how to design the numbers which are greatest and smallest as per the specified number of digits, right. So if I'm giving you five digits and ask for the greatest number, it will become greatest number, it will become five nines, 99999, okay, right. If I ask the smallest number, it will become 1 and 40, so it's 10000, clear. Similarly if I give you say six digits, I mean I want the greatest six digit number, right. तो greatest का मतलब हो गया there will be six nines now, so it will become 999999, so this is how it will be the greatest number. Smallest number, एक one बाकी five zeros, so it will become 1000000, clear. So this is how the greatest and smallest numbers would be figured. I hope it is clear, right. So greatest some digit number, smallest some digit number, okay. Here there is no condition, it means the numbers can be repeated. Here there is no conditions, it means the numbers can be repeated. Now I'll summarize whatever you have learned till now, okay.
Yes, so I'm sharing the screen with you people now, and we will summarize what we have learned till now, right? Yes, so here we go with the screen sharing part. And as we all know, the greatest number, the smallest numbers are the keys. So it will be a very interesting point to discuss. Okay, so I'm writing here. Look, okay, so I'll start here. Can you see this? Yes. So we have got two cases. Listen, 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 listen. Greatest, smallest number, greatest, smallest numbers have got two cases. Understand this. If I'm saying this is my greatest, smallest number again, so this has got two cases. Understand this. It has got two cases. मतलब सर कौन सा two case? पहला, देखो मैं बता रहा हूँ, सबसे पहला क्या हो सकता है, देखो ये मैंने ड्रॉ किया अभी यहां से, राइट, एंड फिर दूसरा हम ड्रॉ करेंगे यहां से. सो देयर वुड बी टू केसेस. ओके, पहले केस का नाम क्या है और दूसरे केस का नाम क्या है जरा देखो. पहला सीन क्या बोलता है? फर्स्ट सीन सेज numbers can be repeated, ठीक है. एंड सेकेंड सीन सेज numbers can't be repeated. Can you see this? बड़ा मुझे आवाज आपकी नहीं आ रही है. Okay, so these are two cases. The first case is numbers can be repeated. Other case is numbers, sorry, can't be repeated. It has been a mistake here. Okay, just one second. I'm writing here. Numbers can't be repeated. Clear? Right? So these are two cases. अभी मुझे एक बात बताओ, अगर मैं तुमको बोलता हूँ ग्रेटेस्ट स्मॉलेस्ट नंबर्स, सिर्फ मैंने इतना ही बोला, सिर्फ क्या बोला? ग्रेटेस्ट स्मॉलेस्ट नंबर, सिर्फ इतना ही बोला. तो एक चीज तुमको यहाँ पर ध्यान रखनी है. सुनो मैं क्या कह रहा हूँ. अगर मैंने बोला ग्रेटेस्ट स्मॉलेस्ट नंबर, तो एक चीज का विशेष क्या, इसका एक मतलब होता है. क्या मतलब होता है? इफ आई डू नॉट स्पेसिफाई एनीथिंग, है ना, if not specified, if not specified, okay, let's change the color. If not specified, ना, तो ग्रेटेस्ट और स्मॉलेस्ट का एक मतलब होता है. क्या मतलब है यहाँ पर? सुनो 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 सुनो. अगर पहले से कुछ बोला नहीं है, राइट, तो इसका मतलब available digits 1 2 1 2 9. ये बहुत खास बात है. मैं इसको थोड़ा सा, here we have available digits 1 to 9. Understand this. Okay, so you have this scenario. This is very interesting. If not specified, available digits equals to 1 to 9. ठीक है सर, मतलब इसका क्या होता है? मतलब ये होता है कि अगर मैंने तुमको सिर्फ इतना ही पूछा कि टेल मी 5 डिजिट ग्रेटेस्ट नंबर और 5 डिजिट स्मॉलेस्ट नंबर, मैं सिर्फ इतना ही पूछूं, तो इसका मतलब है कि मेरे पास अवेलेबल डिजिट्स 1 to 9 है. जस्ट 1 सेकेंड.
अगर मैं तुमसे एक क्वेश्चन पूछूं, प्लीज टेल मी 5 डिजिट ग्रेटेस्ट नंबर, इतना ही पूछूं, क्या पूछूं, क्या, व्हाट शुड बी माय क्वेश्चन? मैं क्वेश्चन तुमसे पूछ रहा हूं, क्या क्वेश्चन है मेरा, बोलो जल्दी से, जल्दी से क्वेश्चन बोलो। टेल मी 5 डिजिट्स ग्रेटेस्ट नंबर, इतना ही क्वेश्चन है अगर मान लो मेरा, राइट? या तो ज्यादा से ज्यादा मैं क्या करूंगा, ग्रेटेस्ट के बदले में स्मॉलेस्ट बोल दूंगा, यही करूंगा मैं, है ना? राइट? तो मैं ज्यादा से ज्यादा ग्रेटेस्ट की जगह पर स्मॉलेस्ट कर दूंगा अगर मैं इनमें से कोई भी क्वेश्चन पूछता हूं। ठीक है, ठीक है, मैंने क्या किया है देखो, मैंने बहुत कुछ लिखा है, बट फिलहाल मैं तुमको ये बता रहा हूँ, जो बता रहा हूँ पहले वो समझ लो, बाकी चीजें तुमको समझ में आ जाएंगी। सबसे पहले हम उस क्वेश्चन को देखेंगे जो हमारे सामने अवेलेबल है, मतलब हुआ, कनेक्ट हो गया। नाउ लुक एट दिस पार्ट, इट इज वेरी इंटरेस्टिंग। We have this question now. Tell me the greatest 5 digit numbers using digits 4, 8, 9 to 7. और यहाँ पे tell me the smallest है ये 5 digit numbers using digits 4, 8, 9 to 7. ठीक है? तो digits are same. You have to give me greatest number and smallest number. Right? So can you give me the answer? Can you give me the answer? What is greatest digit? What is the greatest number, not digits? Tell me what is the greatest digit number? Greatest 5 digit number? 4, 8, 9 to 7. What is the greatest 5 digit number? अरे हम लोग ग्रेटेस्ट नंबर लिखने के लिए क्या करते हैं, सब कुछ डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखते हैं, भूल गई तुम? 9, 8, 7, 4, 2, खत्म। क्या? हाँ, अभी टेल मी व्हाट इज द स्मॉलेस्ट नंबर? Yes, so you have got, this is the greatest number, yes or no? And this is the smallest number, right? Here when numbers could, this is when numbers can't be repeated and available digits are 4, 8, 9 to 7. क्या देखो यहाँ पे कोई भी नंबर रिपीट हुआ है क्या? नहीं ना, राइट? बराबर। सो दिस इज व्हेन नंबर्स कैन नॉट बी रिपीटेड, पहली चीज। दूसरी चीज, द अवेलेबल डिजिट्स आर ओनली दीज, देखो 5 ही डिजिट्स है, आपको इसको ही यूज करके बनाना है, इसको ही यूज करके बनाना है, ठीक है, राइट? अभी देखो इधर, अभी ये वाला क्वेश्चन देखो, ये वाला, ये नया क्वेश्चन जो है ना, ये बहुत काम का क्वेश्चन है, आई एम शोइंग यू, just look at this question, it's very special as well. Tell me 5 digit greatest number and tell me 5 digit smallest number. Can you see this? Yes ki no? 5 digit greatest number, 5 digit smallest number, बराबर है ना? अब यहाँ पे कौन सा डिजिट यूज करके बनाना है बताया क्या? इसमें कौन सा डिजिट यूज करके बनाना है ऐसा इन लोगों ने बताया है क्या? राइट?
तो जब इन्होंने नहीं बताया है कि कौन सा डिजिट यूज करना है, इसका मतलब हमारे पास क्या अवेलेबल है, 1 to 9। ये देखो, ये इफ नॉट स्पेसिफाइड अवेलेबल डिजिट्स आर फ्रॉम 1 to 9। जैसे यहां पर बता दिया था इन लोगों ने पहले से ही कि हमारे पास इतने ही डिजिट्स हैं, 4 8 9 2 7, तो हम लोग और कुछ यूज नहीं कर सकते थे। बट यहाँ पर क्या, यहाँ पर कुछ बोला ही नहीं है, सिर्फ क्या बोला है, 5 डिजिट्स ग्रेटेस्ट नंबर, 5 डिजिट्स स्मॉलेस्ट नंबर। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, राइट? अब हमारे पास दो ऑप्शन है, ठीक है? अब हमारे पास दो ऑप्शन यहाँ पर पैदा होते हैं। सर कौन से? पहला देखो, मैं यहां से एरो बना रहा हूं, ये देखो फर्स्ट ऑप्शन इधर है, सेकंड ऑप्शन अपना इधर आएगा, सेकंड ऑप्शन इधर आएगा, ठीक है? हम दोनों ऑप्शन देखते हैं, क्लियर? तो देखो पहला ऑप्शन क्या है, बोलो टेक्स्ट। पहला ऑप्शन जल्दी से बोलो, पहला ऑप्शन नंबर्स कांट बी रिपीटेड। नंबर्स कैन बी रिपीटेड, चलो पहले यही लेते हैं, नंबर्स कैन बी रिपीटेड। ये अगर मान लो नंबर्स रिपीट हम लोग कर सकते हैं तो अलग सीन होगा, और मान लो अगर नंबर्स कांट बी रिपीटेड आता है, नंबर्स कांट बी रिपीटेड, है ना, राइट? तो अलग सीन आता है, ठीक है? जरा देखते हैं क्या क्या आंसर आएगा ना। अगर मैं बोलता हूं कि आपको 5 डिजिट ग्रेटेस्ट नंबर बनाना है, 5 डिजिट ग्रेटेस्ट नंबर, आप ध्यान दो क्या बोल रहा हूं मैं, 5 डिजिट ग्रेटेस्ट नंबर, है ना? और दूसरी बात, नंबर्स कैन बी रिपीटेड, बराबर है? मतलब कोई भी नंबर को आप बार बार, तो क्या नंबर आएगा यहाँ पर, 5 डिजिट का सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, जल्दी बोलो। आप कुछ भी यूज कर सकते हो, 1 से लेके 9 तक कुछ भी यूज कर सकते हो, जल्दी बोलो। सबसे बड़ा नंबर जब रिपीटिशन अलाउड है, और 1 से लेके 9 का सबसे बड़ा नंबर, बी क्विक। जल्दी बोलो। Which is the greatest 5 digit number? So 5 digit greatest number is 5 bar 9. Now tell me what is 5 digit smallest number? What is 5 digit smallest number? जल्दी, ये भी हमने किया है, फटाफट जल्दी जल्दी जल्दी। क्लियर? अभी यहाँ पे कैसा देखो, समझो इस चीज को, नंबर्स कैन बी रिपीटेड मतलब यू आर फ्री, यू कैन राइट एनी नंबर ऑफ टाइम्स। तो हमारा ये आंसर है जो हमने आज सीखा। अगर नंबर्स कांट बी रिपीटेड की हम बात करते हैं, तो हमारा ये जो सम है अभी करेंटली, वो इसमें कन्वर्ट हो जाता है, किसमें, ये वाले टाइप में, ठीक है? कौन से वाले टाइप में, ये जो हमने पहला वाला बॉक्स किया ना, ये वाला टाइप, ये वाले टाइप में हमारा ये जो पार्ट है, ये पार्ट ये कन्वर्ट हो जाता है। खाली फर्क क्या है दोनों में, एक ही फर्क है, सिमिलरिटी है कि यहाँ पे भी रिपीट नहीं होता है, यहाँ पे भी रिपीट नहीं होगा, लेकिन फर्क ये है कि यहाँ पे बोल दिया है कि आपको इन्हीं डिजिट्स को यूज करना है। देखो यहाँ पे बोला है ना कि आपको इन्हीं डिजिट्स को यूज करना है, और यहाँ पे कुछ भी नहीं बोला है, यहाँ पे बोला ही नहीं, डिजिट्स के बारे में बात ही नहीं की है। तो ऑटोमेटिकली जब डिजिट्स के बारे में बात नहीं की जाती है, जब डिजिट्स के बारे में बात नहीं की जाती है, जो कि यहाँ पर नहीं किया हुआ है, तो आपका यही जो सम है वो इसमें से डेटा निकलता है। समझ में आ रही बात है ना? तो क्या करेंगे हम, 1 से लेके 9 तक, क्या 1 से लेके
9 तक के नंबर्स यूज करेंगे, क्लियर, और यूज करके 5 डिजिट नंबर बनाएंगे जो कि सबसे बड़ा होगा, सबसे बड़ा होगा। तो ये कैसे बनेगा, कैसे बनेगा सर? जैसे हमने ये बनाया था, ये कैसे बनाया था, ये देखो यहां से लेके यहां तक जो भी डिजिट्स थे हमने सबको डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखा तो लार्जेस्ट नंबर बन गया, असेंडिंग ऑर्डर में लिखा तो स्मॉलेस्ट नंबर बन गया। तो वही सेम काम हम यहाँ पे भी करेंगे। तो चलो लिखते हैं, चलो फटाफट लिखना चालू करेंगे। ये देखो, अगर मुझे लिखना है लार्जेस्ट नंबर तो मैं क्या लिखूंगा, 9 8 7 6 5। समझा क्या? ये लार्जेस्ट नंबर हो गया क्योंकि मैंने क्या किया, सबसे बड़े नंबर को लिया और वहां से डिसेंडिंग ऑर्डर पे चले गया। मैं, मुझे 5 डिजिट चाहिए था इसलिए मैं यहीं पे रुक गया। अगर मुझे 6 डिजिट चाहिए होता तो मैं यहाँ पे 4 भी लिखता, 7 डिजिट चाहिए होता तो मैं 3 भी लिखता, है ना, राइट। बट मुझे 5 ही चाहिए था इसलिए मैं जाके रुक गया वहां पर, है ना। स्मॉलेस्ट लिखना है सर, स्मॉलेस्ट, तो स्मॉलेस्ट लिखने का तरीका क्या है, सबसे छोटे नंबर को पहले लिखो। तो सबसे छोटा तो सर 0 होता है। देखो अवेलेबल डिजिट्स एक्चुअली यहाँ पे 1 to 9 नहीं है, तो मैंने गलती से लिख दिया, इट इज 0 to 9। I'll repeat here. It is 0 to 9. Sorry, things went wrong. ये 0 है यहाँ पर, तो एक काम कर सकते हैं हम लोग, ये देखो 1 to 9, 1 to 9, और मैं यहाँ पे एंड 0 भी डाल देता हूँ, ठीक है। अवेलेबल डिजिट्स यहाँ पे डाल के मैं लिखता हूँ एंड 0, एंड 0। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। तो अवेलेबल डिजिट्स है 1 to 9 एंड 0। तो अभी देखो यहाँ पे, अगर मुझे सबसे छोटा नंबर चाहिए तो क्या करना पड़ेगा, सबसे छोटा नंबर, सबसे छोटा नंबर, स्मॉलेस्ट नंबर चाहिए ना, स्मॉलेस्ट नंबर। ये देखो 5 डिजिट स्मॉलेस्ट नंबर, तो मैं क्या करूंगा, सबसे छोटे वाले नंबर को पहले लिखूंगा। सबसे छोटा नंबर कौन है, जल्दी बताओ इसमें से। हाँ, पर मैं 0 से शुरुआत नहीं कर सकता, क्यों? लेकिन मैं 0 से शुरू कर सकता हूँ क्या, क्योंकि जैसे मैं 0 डालूंगा वो 4 डिजिट नंबर हो जाएगा, है ना। तो ऐसे एक सिनेरियो में हम लोग 1 से शुरू करते हैं, बाद में 0 डालते हैं, ठीक है। तो हमने ये सम पिछले लेक्चर में किया था कि हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर 1 से शुरू करेंगे, फिर 0 डालेंगे, फिर उसके बाद 2 3 4, याद है। Clear? So this is what you are going to get when numbers are not repeated. समझा? तो इसी के बेसिस पे मैं तुमको यहाँ पर, इसी के बेसिस पे मैं तुमको यहाँ पर कुछ लिख कर देता हूँ। वो जो मैं लिख कर दूंगा वो ध्यान रखना, ठीक है। ये देखो मैं 2 बॉक्स बना रहा हूँ। पहला बॉक्स, नंबर्स कैन बी रिपीटेड के लिए ग्रेटेस्ट और स्मॉलेस्ट के बारे में यहाँ पे लिखेंगे हम, ठीक है, ओके। दूसरा बॉक्स, नंबर्स कांट बी रिपीटेड के लिए। कैन यू सी दिस, है ना। जब नंबर्स रिपीट होता है, देखो यहाँ पे नंबर्स रिपीट हो रहा है ना, तो ग्रेटेस्ट क्या होगा, जब नंबर रिपीट हम कर सकते हैं तो ग्रेटेस्ट क्या होगा, ग्रेटेस्ट होगा 9999 एंड सो ऑन, ठीक है। और स्मॉलेस्ट क्या होगा, स्मॉलेस्ट क्या होगा, पहले 1 बाद में उतना 0। क्लियर और नॉट? ये कब अगर नंबर्स रिपीट हो सकता है तो, क्लियर। पर सर अगर नंबर रिपीट नहीं हो सकता है तो फिर आप क्या करोगे, अगर नंबर रिपीट नहीं हो सकता है, अगर पहले से बोल दिया कि आपको नंबर रिपीट नहीं करना है, ठीक है, बराबर, तो क्या लिखोगे आप, ग्रेटेस्ट क्या होगा,
ग्रेटेस्ट क्या होगा? ग्रेटेस्ट, अगर नंबर रिपीट नहीं हो सकता है तो ग्रेटेस्ट क्या होगा? 9 सबसे पहले, और उसके बाद असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है आपको। क्या करना है? सॉरी, डिसेंडिंग ऑर्डर में 9 से शुरू करना है और डिसेंडिंग ऑर्डर में जाना है। क्या करना है? डिसेंडिंग ऑर्डर में जाना है। 9 से शुरू करना है और डिसेंडिंग ऑर्डर में जाना है। यार दिमाग में बिठा लो ये बात। 9 से शुरू करना है, डिसेंडिंग ऑर्डर में जाना है, और स्मॉलेस्ट 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 बोलो, स्मॉलेस्ट 1 से शुरू करना है, फिर 0 पे जाना है, और उसके बाद असेंडिंग ऑर्डर में जाना है। आई होप इट इज क्लियर। क्लियर? 1 से शुरू करना है, 1 से शुरू करना है, 0 पे जाना है, और उसके बाद फिर असेंडिंग ऑर्डर में लगातार जाना है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये एल्गोरिथम्स है, आपको नंबर बनाने आना चाहिए। राइट और नॉट? पक्का ना? यस, सो प्लीज राइट दिस, द एंटायर टेबल। ये ब्लू में मैंने तुमको दोनों दो एग्जांपल्स दिए हैं, देखो 2 एग्जांपल्स हैं, इनको आप अलग से लिखिए और बाकी चीजों को अलग से लिखिए। मैं लाइन बना देता हूं ताकि समझना आसान हो जाए। ये लो, ठीक है, ये एक लाइन है, मैंने बना दी है। ठीक है ना? ये एक लाइन है, मैंने बना दी है। इसका कलर भी हम बदल देते हैं। जल्दी करिए। ठीक है, मैंने एक मोटी लाइन बना दी है। हाँ, मैंने एक डार्क लाइन बना दिया। आप लोग वो ऊपर वाला भी लिख लीजिए, नीचे वाला एग्जाम्पल्स है। लाइन के ऊपर वाला कंसेप्ट है, नीचे वाला एग्जाम्पल्स है। दिस इज समरी। हाँ, आज जो हमने कंसेप्ट 7 किया, आज हमने कंसेप्ट 7 किया ना, तो ये पूरा समरी है कंसेप्ट 7 तक के नंबर्स का। दिस इज द कंप्लीट समरी। रिकॉर्डिंग पीपल विल पॉज द रिकॉर्डिंग एंड देन राइट। ना अभी तक हमने जो भी नंबर्स पढ़े सब में कंपैरिजन की बात की थी, ग्रेटेस्ट नंबर की बात की, स्मॉलेस्ट नंबर की बात की, है ना? इन सारी चीजों को अगर हम लोग कंबाइन करते हैं, सारी चीजों को एक साथ अगर हम लोग कंबाइन करते हैं, तो आई कैन राइट अ समरी। आई विल टेल यू हियर, सी आई एम राइटिंग अ समरी हियर, और ये समरी मैं आपके लिए लिख रहा हूँ। ठीक है, राइट? समरी मैं आपके लिए लिख रहा हूँ, इसलिए समरी बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान दो। राइट, ये रहा चीज, और मैं थोड़ा सा लाइन विड्थ थोड़ा सा मोटा कर देता हूँ आप लोगों के लिए, है ना? और ये समरी लिखने का पर्पस फिर ज्यादा सही तरीके से क्लियर भी होगा और आप लोग की समझ में भी आएगा। ये देखो, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट समरी आई एम राइटिंग फॉर यू पीपल। Here we go. Right? What is the summary, sir? Listen. समरी क्या है बता रहा हूँ, ध्यान से देखो, बहुत सिंपल समरी है। समरी ये है कि whenever you are solving, आपको किस तरह का क्वेश्चन आएगा लाइफ में, सिर्फ खाली 6 स्टैंडर्ड में नहीं, जिंदगी में कभी भी अगर आप इस सिनेरियो से डील कर रहे हो, मेरी बात समझो मैं क्या कहना चाहता हूँ। जस्ट लिसन हियर व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। आप जिंदगी में कभी भी अगर ऐसा सिनेरियो देखते हो, 1 सेकेंड,
जब भी आपकी जिंदगी में ग्रेटेस्ट और स्मॉलेस्ट नंबर का प्रॉब्लम आएगा, चाहे कहीं भी आ जाए, एग्जाम के अंदर आ जाए, नोटबुक के अंदर आ जाए, या कहीं और आ जाए, नॉर्मल लाइफ में भी आएगा, कभी दुकान जाओगे आएगा, कभी कहीं पर गए आएगा, तो ग्रेटेस्ट स्मॉलेस्ट नंबर जो का जो प्रॉब्लम है ना, उसके दो ही टाइप्स फिलहाल होंगे, उन दो को फिर हम चार में डिवाइड करेंगे। प्लीज लिसन हियर, मैं तुम लोगों को टाइप बताने की कोशिश कर रहा हूँ। सबसे पहला जो टाइप होगा वो मैं यहाँ लिख रहा हूँ, ठीक है, और उसके बाद उसी से निकलने वाला जो दूसरा टाइप होगा उसको मैं यहाँ लिख रहा हूँ, ठीक है। ओके, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ अस टू अंडरस्टैंड कि वो जो प्रॉब्लम आएगा वो कितने तरह का हो सकता है। क्लियर? यस कि नो? ओके, तो जो सबसे पहला प्रॉब्लम है ना, वो होगा, देखो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ सबसे पहला प्रॉब्लम क्या होगा, ठीक है। हम लोग ने किया ना अभी थोड़ी देर पहले कुछ, उसी को हम लोग यहाँ पर समराइज कर रहे हैं कि सबसे पहला प्रॉब्लम कैसा होगा, राइट। तो आपको हमेशा दो ही सीन मिलेगा, आपको ऐसे ग्रेटेस्ट स्मॉलेस्ट नंबर बनाने पड़ेंगे जिसमें डिजिट्स कैन बी रिपीटेड एंड डिजिट्स कांट बी रिपीटेड। ऐसे दो सीन आपके सामने हमेशा आएंगे। क्या? डिजिट्स कैन बी रिपीटेड एंड डिजिट्स कांट बी रिपीटेड, ऐसे दो सीन हमेशा आएंगे। कभी भी कोई बोलेगा ना फाइंड 5 डिजिट सीन होगा, एक तो क्वेश्चन में लिखा होगा डिजिट्स कैन बी रिपीटेड, नहीं तो लिखा होगा डिजिट्स कांट बी रिपीटेड, ठीक है। अगर सर कुछ भी नहीं लिखा है तो, कुछ भी नहीं लिखा है तो मतलब डिजिट्स कैन बी रिपीटेड, ठीक है। कुछ भी नहीं लिखा है तो डिजिट्स कैन बी रिपीटेड। नाउ लिसन, यस, नाउ अगर मैं यहाँ पर आपको डिजिट्स कैन बी रिपीटेड की बात करूँ तो इसमें दो केसेस हैं। क्या केसेस हैं? अभी अभी हमने किया है सब कुछ, है ना। इसको मैं सिर्फ तुम्हारे लिए क्लासिफाई कर दे रहा हूँ ताकि तुम्हारे लिए इजी हो जाए चीज़ों को समझ पाना, नथिंग मोर। तो इसमें सर दो केसेस हैं, ये मैं पहला केस लिख रहा हूँ, है ना, और यहाँ से मैं दूसरा केस लिखूंगा। सो दीज आर टू इंपॉर्टेंट केसेस दैट यू हैव। इन द सिमिलर वे, हाँ मैं सुन रहा हूँ। इन द सिमिलर वे यहाँ पे भी दो केसेस आएगा, पर पहले हम यहाँ पे लिख लेते हैं पहला केस। जरा देखो क्या लिख रहा हूं मैं, टेक्स्ट, कैन यू सी दिस, राइट। डिजिट्स कैन बी रिपीटेड अगर आया तो उसमें दो केसेस कौन से हैं सर? सबसे पहला, डिजिट्स आर स्पेसिफाइड, ठीक है। क्या बोला मैंने? डिजिट्स आर स्पेसिफाइड, डिजिट्स आर, वेरी गुड, राइट। और दूसरा क्या आएगा इधर? दूसरा क्या आएगा? करेक्ट। उसी तरह से मैं भी इसको बाद में लिखूंगा, पहले यहाँ लिख लूँ। ये देखो यहाँ पे भी ऐसे दो होंगे, यहाँ पे भी ऐसे दो होंगे। मैं इसको थोड़ा नीचे ले जाता हूँ, इसमें भी दो होंगे। कौन से होंगे? इसमें भी सेम दो होंगे, ठीक है, राइट। तो अभी हम लिखते हैं, देखो जरा, यहाँ पे मैं रिपीट कर रहा हूँ, डिजिट्स आर स्पेसिफाइड, और यहाँ पे भी डिजिट्स आर स्पेसिफाइड। कैन यू सी दिस? यस। और डिजिट्स आर नॉट स्पेसिफाइड मैं यहाँ पे लिख दूंगा, अभी देखो जरा, कंट्रोल वी, आर नॉट specified. Can you see this? Digits are not specified, और यही सेम चीज यहाँ पे भी देखने मिलेगी, digits are not. I hope it is clear. Clear or not? So here we go. Yes, here we go. So
लिसन लिसन लिसन। तो पहला क्या होगा, क्वेश्चन कैसा बनेगा, क्वेश्चन बनेगा ऑफ द टाइप ग्रेटेस्ट नंबर where digits can be repeated and digits are specified, greatest number where digits can be repeated, digits are not specified, greatest number digits can't be repeated but digits are specified, greatest number digits can't be repeated but digits aren't specified। और ये चारों के मेथड हम लोगों ने बहुत ही डिटेल में डिस्कस किए हैं, राइट बहुत डिटेल में हमने ये मेथड्स डिस्कस किए हुए हैं ऑलरेडी। तो मैं चाहता हूं कि ये जो चार्ट मैंने बनाया ये सिर्फ तुम लिखो नहीं, इसको समझो भी और इसको यूटिलाइज भी करो अपने लिए, राइट। सो प्लीज राइट दिस चार्ट फॉर योरसेल्फ। आज के लेक्चर का ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है और ये समरी भी है, प्लीज राइट इट क्विकली। Not summary का first exercise, the first exercise from CBSE textbook, right? So NCERT textbook exercise number 1, that is your homework, you have to do it. I'll take test and if any question is in doubt section you can always ask me, okay? So no, you just call me if you've got some doubt, else just complete the homework. Goodbye, take care, bye beta। आपने तो आज बोर्ड का इस्तेमाल ही नहीं किया।